Good morning, students. In chapter number 5, Forms of Business Organization, Public Sector Organization, we are studying. Public sector organizations are those organizations which are owned, financed, and managed and controlled by government or a combination of governments. So, in that, almost you have studied departmental organization and statutory corporation. Now, today, we are going to see government company. See, the company which is registered under the Companies Act 2013 having minimum 51% of paid up share capital held by the central government or any state government or partly by central government and partly by one or more state government, it is known as government company. Examples you can see, that is National Thermal Power Corporation NTPC, then Bharat Heavy Electricals Limited BHEL, Hindustan Machines Tools HMT. So these are some examples of government company. See, the shares of government company are purchased in the name of President of India or in the name of Governor of a state. या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, तो इनके नाम से ये गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स परचेज किए जाते हैं. नाउ सी द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. See, first one is a annual report. In government company, annual reports and audit reports are laid or presented before the parliament, and in case of state company, such reports are presented before the state legislature. तो इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी में जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं या ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं, एंड यदि ये स्टेट कंपनी है तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये सारे रिपोर्ट्स रखे जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. सी, गवर्नमेंट on the advice of Comptroller and Auditor General of India appoints auditor of a government company. तो यहाँ पे जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो कॉम्प्ट्रोलर या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के एडवाइस से अपॉइंट करते हैं. थर्ड जो है वो है शेयर होल्डिंग्स. A government company may either wholly or partly owned by government. In wholly owned company, 100% capital is provided by the government, and in partially owned companies, minimum 51% capital is held by the government or combination of government. Private concern can hold maximum 49% share capital. तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग्स है वो यदि वोली ओन्ड है तो पूरा का पूरा 100% गवर्नमेंट कैपिटल प्रोवाइड करती है, एंड यदि ये पार्शियली ओन्ड है तो 51% मैक्सिमम पोर्शन रहता है गवर्नमेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, एंड 49% ये प्राइवेट सेक्टर से आता है. फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स who are nominated by the government and private investors together. Government companies have professional management and skillful employees, which results into higher productivity and performances. तो ये जो मैनेजमेंट है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, एंड ये गवर्नमेंट इन्हें नॉमिनेट करती है. एट द सेम टाइम प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इन्हें नॉमिनेट करते हैं. तो ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का दोनों यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी कैन सी दैट इज द फीचर्स. फर्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. अ गवर्नमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 and is subject to the provisions of this act like any other company.
However, the central government may direct that any of the provisions of the Companies Act shall not apply to a government company or shall apply with certain modifications. तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना होता है कि गवर्नमेंट कंपनी 2013 एक्ट के हिसाब से पूरा का पूरा ना चले बट समवट मॉडिफिकेशंस करके ये हो सकता है. सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटी. A government company is a separate legal entity separate from the government. It can acquire property, can make contracts and can file suits in its own name. इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कंपनी को सेपरेट लीगल स्टेटस होता है एंड वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या केस भी फाइल कर सकते हैं अपने नाम से. नेक्स्ट थर्ड है मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स. इन गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट. सो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऐसे दोनों डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं. तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ये गवर्नमेंट की होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा होती है जो कि गवर्नमेंट रिक्रूट करती है. नेक्स्ट फीचर है ओन स्टाफ. अ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ इट्स ओन स्टाफ except government officials who are sent on deputation. Its employees are not governed by civil service rule. तो ये जो भी यहाँ पे स्टाफ अपॉइंट किया जाता है वो इनका खुद का स्टाफ है एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें कभी कभी गवर्निंग के लिए भेजा जाता है बट एम्प्लॉयज जो पूरे होते हैं आर नॉट गवर्न बाय सिविल सर्विस रूल्स. तो ये फोर्थ पॉइंट है. नेक्स्ट फिफ्थ वन, फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रोल्स. अ गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये बजटरी से, अकाउंटिंग से, ऑडिट कंट्रोल से थोड़ी डिफरेंट होती है. जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में होता है वैसे यहाँ पे नहीं होता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. सी फर्स्ट मेरिट, इजी फॉर्मेशन. A government company can be easily formed under the Companies Act just by an एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है वो वेरी इजी एंड सिंपल होता है. कंपनी एक्ट 2013 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है. सेकेंड मेरिट है इंटरनल ऑटोनॉमी. अ गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंटली. इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम ministerial control and political interference in its day-to-day functioning. मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपने अफेयर्स इंडिपेंडेंटली मैनेज करती है एंड इन पे किसी मिनिस्टर का या किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. थर्ड वन है इजी टू अल्टर. ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी चेंज by simple altering the memorandum of association of the company without seeking the approval of the parliament. मतलब यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट होता है या अल्टरेशंस होता है वो सिंपल होता है, इजीली होता है एंड इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है.
फोर्थ है डिसिप्लिन. The government company is subject to the provisions of the Companies Act, which keeps the management of the company active, alert and disciplined. तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पे डिसिप्लिन होता है सो दैट मैनेजमेंट कैसी हो, एक्टिव हो, अलर्ट हो. फिफ्थ वन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. A government company can employ professionally qualified managers because it has its own personal policies. तो यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने देखा है कि दूसरे पॉइंट में इंटरनल ऑटोनॉमी है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है. तो यहाँ पे जो भी स्टाफ अपॉइंट किया जाता है वो कंपनी खुद करती है एंड वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर 6, मेरिट. Public accountability. The annual report of a government company is presented to the parliament or a state legislature. These reports can be discussed and debated there. तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है. जो भी एनुअल रिपोर्ट्स गवर्नमेंट कंपनी प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, तो उन्हें डिस्कस किया जाता है, उन पे डिबेट किया जाता है. So these are the merits of the government company. Now we are going to see demerits of government company. First one is autonomy only in name. Independent character of a government company exists only in name. In reality, politicians, ministers, government officials interfere excessively in the day-to-day working of the government company. अभी यहाँ पे सिंपली गवर्नमेंट कंपनी जैसे बोला कि ऑटोनॉमी है तो ये खाली नाम के लिए है, बट डे टू डे ऑपरेशंस जो भी किए जाते हैं कंपनी के तो उसमें ये मिनिस्टर्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर पॉलिटिशियंस ये लोग डिस्टर्बेंस करते ही है. सेकेंड है फियर ऑफ एक्सपोजर. The annual report of the government company is placed before the parliament, state legislature. The working of the company is exposed to press and public criticisms. Therefore, management of the government company often gets demoralized and may not take initiative to come out with an implement something innovative. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इन्हें अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने होते हैं एंड पूरी मीडिया के सामने, प्रेस के सामने या फिर पब्लिक के क्रिटिसिज्म के सब सामने ये सब डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है. तो ये जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट कंपनी की ये डिमोरलाइज हो जाती है एंड इनिशिएटिव नहीं लेते कि कुछ इनोवेटिव काम करे. तो यहाँ पे डिमोरलाइज हो जाते हैं. देन नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सपर्टाइज. The key personnel of a government company are often deputed from government departments. Such persons generally lack expertise and commitment, leading to lower operational efficiency of the government company. तो अभी हमने मेरिट्स में देखा ऑलरेडी प्रोफेशनल मैनेजमेंट वॉज देयर, बट इन रियलिटी यहाँ पे जो भी वर्कफोर्स है दैट इज डेप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वहाँ से आते हैं एंड दैट्स वाई वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते हैं एंड उनकी कमिटमेंट नहीं होती है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल और टारगेट. नेक्स्ट नंबर 4 है लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू. Sometimes there is a lack of professional view while taking decisions by the board, as these companies are more bounded with fulfillment of social objective of the business. तो यहाँ पे प्रोफेशनल व्यू नहीं है. Why? Because ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट कंपनी है ये सोशल ऑब्जेक्टिव से भरी होती है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग से ज़्यादा ये सोशल ऑब्जेक्टिव पे कॉन्सेंट्रेट करती है. सो इन दिस वे यहाँ पे प्रोफेशनल
व्यू नहीं होता है। सो यहाँ पे हमने देखा गवर्नमेंट कंपनी, इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, फीचर्स देखे, मेरिट्स देखे एंड डीमेरिट्स देखे। थैंक यू।